now to so now guys we are going to start. Already we can check with the help of this command, we can check the Hadoop version. So there is a command is called Hadoop version, so you can check easily which version of Hadoop. So we already configure Hadoop inside this Linux. It's 2.71. It is a stable one. Okay, and already I installed the Scoop inside it. So I got a Scoop package from this website, this link. I can show you. This is the link. If you simply type on a Google, in a Google you just simply type a Hadoop Scoop download. So you can get a official website of Scoop. Just click on Scoop and then download nearby mirror. Then HTTP and backup site. So you click on this 1.47. So whatever be the 78 17 MB, so you can just click on it. It will ask you a save file or a open file. So already I downloaded, so I'm just cancel out here. I can show you here. I downloaded this one. Okay, then after that I need a MySQL connector, because what we are going to do today, what is the agenda of today's lecture is Scoop. It is a one of the major tool inside a Hadoop. So with the help of Scoop we can easily transfer the data from RDMS to Hadoop, either Hadoop to RDMS we can perform. So this is, that's why the Scoop came into the picture. So Scoop generally we use for transferring a data from RDMS to Hadoop, Hadoop to RDMS. Means RDMS you can transfer your data from Oracle database to Hadoop, Hadoop to Oracle, MySQL to Hadoop, Hadoop to MySQL. Okay, so this is a tutorial point which I downloaded from the internet. Okay, so in a we are going to cover this whole book of Scoop. Okay, what exactly is Scoop doing and what is the role of Scoop. So you can watch here. So traditional application management system, that is interaction of application with relational database using RDMS, one of the source that generate big data. So such big data generated by RDMS is stored in relational database servers. So you know very well relational database servers like MySQL, Oracle. Okay, and when big data storage and analyzer such as MapReduce, Hive, HBase, Cassandra, Pig, etc. of a Hadoop ecosystem came into the picture. So they required a tool to interact with the relational database server. Am I right or wrong? Because inside a Hadoop, inside a Hadoop, MapReduce, Hive, HBase, Cassandra, and Pig is there. And if you want to work on a relational database servers, want to work on a relational database, so you need to you need some tool who can connect with such kind of relational database server, so who can import or export the big data residing in them. So here Scoop occupy a place in the Hadoop ecosystem. So Scoop is a part of the Hadoop ecosystem to provide feasible interaction between relational database server and Hadoop HDFS. Are you getting what I am telling you, Ishraq? So Scoop, here you can see the definition of Scoop is SQL to Hadoop and Hadoop to SQL. So Scoop, just wait. So Scoop is a tool designed to transfer data between Hadoop and relational database servers. Okay, so it is used to import data from relational database such as MySQL, Oracle to Hadoop HDFS, and export from Hadoop file system to relational database. So it is provided by the Apache Software Foundation. So how Scoop work? So the traditional application, how Scoop work, you can see there is a RDMS like MySQL, Oracle. So you can suppose if you are going to transfer the data from RDMS to Hadoop, so you are going to use a Scoop tool import. Okay, if you are going to transfer the data from Hadoop to MySQL, so you need a tool of export tool. Okay, so Scoop import and export, already I told you that what is the role of Scoop import. Now the in second chapter, what he installation. So already I tell you the way how to install the Scoop, very easy way. So first of all you have to download the package. Already I downloaded this one. You can watch this Scoop package. Okay, then after that you have to untar this file. After untar you can just rename this file name Scoop. You get it? Then there is a environment file inside a Linux.
So we have to set a path where we already set the part of Hadoop also. So this is a BASRC environment file. It will take a time to open. Okay, this is where you just come down. Here you can see already I set the scope path here. So home, Ragni, download and scope. Hello, hello, Yasir. Hello, Yasir, are you there? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, अरे भाई क्या हो गया? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है ना? Okay, now we can continue. So here you can see the scoop home path we set. Already Hive, Park, Spark, Hadoop path, Java path, everything we have set here. Okay? अरे बस लिख दिया ही एक लाइन, एक्सपोर्ट स्कूप अंडरस्कोर होम रागनी डाउनलोड स्कोप, और क्या किया? कुछ नहीं किया है. ओके, जो भी तुझे अगर पैकेज चाहिए होगा उसको डाउनलोड कर, अनटार कर, एक नाम रख दे और जिस भी लोकेशन में डाल रहा है वो लोकेशन का नाम सेट कर दे. ठीक है, फिर क्लोज कर दे. और अगर चेक करना है तो देर इज़ अ कमांड इज स्कूप वर्जन. विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड यू कैन डू दिस थिंग. तो यहाँ पे स्कूप का वर्जन दिखा रहा है, ये देख, एक मिनट, ये दिखा रहा है स्कूप 1.47 भी दो. ओके, सो लेकिन एक और, हाँ, तो ये चीज़ वो ट्यूटोरियल पीडीएफ में बताना चाह रहा था. हमें एक जावा का वर्जन चाहिए इसके लिए. ठीक है, इंस्टॉल जावा हमने किया है पूरा का पूरा. फिर इसमें हडूप इंस्टॉल करने का तरीका बताया उसने, देख, वेरीफाइंग हडूप इंस्टॉलेशन. तो हडूप वर्जन टाइप करना होता है. ठीक है, और डाउनलोडिंग हडूप पैकेजेस अगर यहाँ से कर लो, अनटार कर लो, फिर वही बताया कि हडूप का कैसे इंस्टॉलेशन हुआ है. 4 फाइलें कॉन्फ़िगर करनी है. अगर तुझे सीखना होगा तो ये मैं सिखा दूंगा तुझे हडूप का इंस्टॉलेशन. ठीक है, सो उसके लिए कोई, हाँ, उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है. फिर वेरीफाई यान. अब देख इसने स्कूप कैसे किया है. यहाँ पे बताया कि इंस्टॉलिंग स्कूप. पहले उसने स्कूप का पैकेज डाउनलोड किया, उसे क्या किया, अनटार किया, और फिर उसको रीनेम कर दिया. ठीक है, स्कूप नाम का. हाँ, और बैसारसी फाइल खोली और वहाँ पे जाके ये 2 लाइन पेस्ट कर डाली. ठीक है, हेलो, हम्म, पूछो पूछो. यूज़र लिव इसको मैंने डाउनलोड में डाला है, मैंने डाउनलोड, हाँ, तो मैंने डाउनलोड में सेट कर रखा है. ज़रूरी थोड़ी ना है कहीं पे भी डाल दे उसे. तो वहाँ पे इन्वायरमेंट फाइल में तू तो पास सेट कर रहा है ना कि ये स्कूप यहाँ पड़ा हुआ है मेरा. इन लोगों ने लिब में डाला है तो लिब में, मैंने तो डाउनलोड में ही रखा हुआ है तो डाउनलोड में ही है. गेट इट. नाउ नाउ द सेकेंड स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू डू, कॉन्फ़िगर स्कूप होम. तो हमें क्या करना होगा कि स्कूप की एक टेम्पलेट फाइल होती है स्कूप की, जहाँ पे भी रखी होगी मेरी स्कूप, जैसे यहाँ पे रखी हुई है. तो वहाँ पे भी इन लोगों ने बोला कि वहाँ पे भी जावा का पास सेट कर दो, जहाँ मतलब हडूप का पास सेट कर दो. लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर इसका फ्यूचर में पड़ेगा ज़रूर, तो क्या करना है, स्कूप की जो मैंने रीनेम किया था फाइल, उसके अंदर जाना. तो एक लिव नाम से फ़ोल्डर होगा, इसके अंदर नहीं, लिव नहीं होगा, लिव में सारी जार पड़ी होती है. कॉन्फ नाम का फ़ोल्डर होगा, तो इसमें एक स्कूप इन्वायरमेंट फाइल होगी. देख, ये रही स्कूप इन्वायरमेंट. तो इसमें इसको रीनेम करके, ओपन, इसको रीनेम करके इसमें से टेम्पलेट हटा देना. ठीक है, स्कूप इन्वायरमेंट डॉट एस एच. ठीक है, और इस फाइल को खोलेगा तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है इसमें एक हडूप का पाथ देना होगा. तो वो हडूप का पाथ दे देना कि तेरा हडूप कहाँ डाला है एक्चुअली में. ठीक है, तो अगर जाएगा इसके नीचे तो मेरे को लग रहा है देना होगा, ये देख, जैसे कि ये देख, एक वो पूछा हडूप कॉमन का पाथ और हडूप मैप राड का पाथ. समझ रहा है. तो इसको क्या करेंगे हम, इससे ये हटा देंगे और ये हटा देंगे. तो हमें ये हडूप कॉमन और हडूप मैप राड का पाथ देना होगा. और वो हमें कहाँ से पता चलेगा, या तो हम टर्मिनल से ही चेक कर सकते हैं, इको करके, इको लिखें
और डॉलर लगा के हडूप कैप्स करके HADOOP_home। सॉरी, कौन? एक मिनट है, कौन? प्रांजल, एक मिनट रुक जा, आ रहा हूं। इशराक, एक मिनट रुक। आजा बैठ। आपसे बहुत चीज़ें डिस्कस करनी है। हेलो, हाँ इशराक, माई स्क्रीन इज विजिबल ना? ओके, now after that what we are going to do, vi.basrc, we are going to again open a basrc file. Okay, so we down and we will go down and we can check here Hadoop का ये पाथ दिया था ना एक मैपराड का, है ना? तो हम Hadoop का यहाँ पे प्रॉपर एक पाथ दे देंगे। मेरा Hadoop कहाँ डाला हुआ है? होम रागनी डाउनलोड्स में ही पड़ा हुआ है, ठीक है? बोल 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 बोल। कोई बात नहीं, इतना कुछ नहीं है, पता है, बस ये लाइन लिखनी होती है। तुझे ये लाइन लिखना है, बस ये लाइन लिखनी है तुझे, और उसमें ऐसा कुछ हो वो नहीं है, ठीक है? अबे की एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है कि कहाँ पे रखी है वो, मतलब पैकेज कहाँ, एक्सपोर्ट मतलब जो इन्वायरमेंट फाइल है वो एक्सपोर्ट कहाँ से कर रहा है वो पैकेज। अब जैसे मेरा हडूप डाला हुआ है डाउनलोड्स में ही पड़ा हुआ है, तो मैंने वहीं पे डाल दिया है, समझ रहा है? सो ये बेसिक्स मैं तुझे बताऊंगा। अभी तुझे मैंने क्या बोला, हडूप का डेवलपमेंट पार्ट पे ध्यान दे। ये तो अगर तू अब जब EMR का क्लस्टर बनाएगा तो वहाँ तो बन बनाया क्लस्टर तुझे मिलेगा, समझ रहा है ना? ये तो सब सेटअप करना पड़ रहा है, स्कूप डालना पड़ रहा है, वहाँ पे से साला बन बनाया प्लेटफॉर्म है। तो ये भी चीज़ मैं तुझे बाद में सिखाऊंगा, ठीक है? सो वी सेट बोथ द पार्ट ऑफ हडूप इनसाइड, देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सेव इट, और अगेन वी आर गोइंग टू चेक हियर। ये करने के बाद इसने बोला एक MySQL कनेक्टर चाहिए जावा का, क्योंकि यू आर गोइंग टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम MySQL टू हडूप। सो यू नीड अ सम कनेक्टर, तुझे कुछ कनेक्टर की ज़रूरत है। तो अगेन यू आर गोइंग टू डाउनलोड फ्रॉम ऑनलाइन। तो यहाँ पे जाएगा तू, जब तुम ये लिखेगा गूगल में MySQL कनेक्टर डाउनलोड, एक दो लिंक खोल लेना, और जब ये खुलेगा ना तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं, तो यहाँ से तू इजीली डाउनलोड कर सकता है जो भी तुझे चाहिए, समझ रहा है? MySQL का कनेक्टर, हाँ ये सब तू जानता है ना। ओरेकल का चाहिए होगा तो ओरेकल का मिल जाएगा, है ना? ये देख यहाँ पे आ जाता है डाउनलोड के लिए ऑप्शन, ये वाला जावा का डाल लेना। ऑलरेडी मैंने ये डाउनलोड किया, ठीक है? इसके बारे में तो आइडिया होगा तुझे MySQL कनेक्टर जावा का, ओके? हाँ, ओके, देन आफ्टर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we are going to open one more terminal and we go inside the download folder. What the fuck, just wait, download, and then we gonna untar that file -xvf, और मेरा डाउनलोड में पड़ा हुआ है तो MySQL connector. So what is the error I'm getting here? क्या हुआ? just wait and डाउनलोड तो की थी, ये रही। अच्छा 1 दे रखा है, ठीक है? एक्चुअली में ये वाली पड़ी होगी कोई, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ, है ना? मूव टू ट्रेस, ठीक है? फिर हाँ सब कुछ पड़ा है, PPT ना, किसकी हार्ड कॉपी, किसकी हार्ड कॉपी, किसकी हार्ड कॉपी?
सबकी पड़ी भाई, मैं तुझे सब दे दूंगा भाई, तू टेंशन मत ले। हम्म, अरे पैसे की बात नहीं होती मेरे भाई, मेन होता है सीखना, लर्निंग है। हडूप वन, ठीक है, तो ये अनटार कर लिया पैकेज, ठीक है। तो ये अनटार पैकेज आया, इसमें से क्या है, एक जार है ये वाली माई सिक्वल कनेक्टर डॉट जार। इसको क्या करना होगा तुझे, कंट्रोल सी कर, और जहाँ पे भी तूने डाला हुआ है ना डाउन स्कूप, ये रहा तेरा स्कूप, इसके लिव फोल्डर में डालेगा इस जार को, माई सिक्वल की, चाहे ओरिकल की हुई तो ओरिकल की डालेगा, गेट इट। माई सिक्वल कनेक्टर का काम क्या है तेरा, कि वो माई सिक्वल से तू जो भी डेटा ट्रांसफर कर रहा होगा हडूप पर, ठीक है। सो यू नीड अ जार, कनेक्टर की ज़रूरत है, तो वो कनेक्टर मैंने यहाँ डाल दिया, स्कूप के लिव फोल्डर में डाल दिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली। सो अभी हमने सर्विसेज चलाई थी, और ये देख मेरा ये माइसिकल डाला हुआ है इसमें, ठीक है। ये मैंने किस लिए खोल रखा था, अच्छा ये कस्टम रिकॉर्डिंग के लिए चल रहा है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू ओपन अ वन फाइल। अब मैं हडूप में एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ, पहले हडूप की कमांड्स हैं ये बेसिक, आई विल टीच यू दिस पार्ट ऑल्सो। तो हडूप एल करके देखा तो आई थिंक देर इज़ नो डायरेक्टरी इन साइड इट, आई थिंक हडूप एफ एस हर बार लिखना पड़ेगा, हाइफन एल एस फॉर चेकिंग अ लिस्ट इन साइड इट, ओके। देन फॉरवर्ड स्लैश वी आर गोइंग टू, ये देख बहुत सारे सब फोल्डर बने हुए हैं आई थिंक, है ना। सो इवन यू वांट टू क्रिएट योर ओन डायरेक्टरी, एफ एस हाइफन, तेरा नाम क्या है, तो विद द हेल्प ऑफ एम के डी आई एस लकी इज गुड। सो एक लकी नाम की डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ एम के डी यू कैन ईजिली क्रिएट अ लकी डायरेक्टरी है, ओके। हाँ ये सारा हडूप के अंदर ही है, ये कहीं लोकल फाइल सिस्टम में देख लकी टॉप में आ गया, तो एल एस करके देखेगा, ये भैया ये लाइनक्स की है, और हडूप की फाइल एक्सेस करनी है तो हडूप एफ एस हाइफन एल एस कमांड लिखनी पड़ेगी तुझे, तो यू कैन एक्सेस द हडूप, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू चेक कि लकी के अंदर कुछ है डेटा, अभी नहीं है। हडूप एफ एस हाइफन एल एस स्लैश लकी, इनसाइड अ लकी आई एम गोइंग टू चेक कि whether is something inside a lucky or not, so nothing is inside it, okay। Now what is the role of scoop, I told you, just if you want to migrate the huge amount of data from MySQL to Hadoop or RDMS to Hadoop, so then you can go for a scoop command। so already scoop is installed inside a MySQL, और तू मेरे को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि MySQL कैसे डलता है, यू नो वेरी वेल दिस पार्ट, है ना। सो देर इज़ अ कमांड इज sudo apt-get hyphen install MySQL server, okay। so now we are going to create a database here, create database, SQL से familiar है ना। हाँ तो सारा वही काम होता है, it's not a big deal, हाँ, so it's not a big deal, okay। it's not a create a database, you just write down the database name like Pankaj, या लकी नाम का डेटाबेस बनाना है तो लकी कर देते, लक कर देते, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ लक डेटाबेस, ओके। सो क्रिएटेड देख भी सकता है तो अपने नाम का डेटाबेस, सो डेटाबेसेस, देयर इज अ कमांड इज सो डेटाबेसेस, ठीक है। ये सब पार्ट है, तो लक नाम का एक डेटाबेस हो गया। तो नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस लक डेटाबेस, आई एम गोइंग टू यूज दिस लक डेटाबेस चेंज, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सम फाइल इनसाइड इट। सो हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फाइल इनसाइड इट, create a table inside it, there is a command create table name, suppose emp we are going to create, okay। and inside we are going to give at least two side, okay, id int, and name we can give a varchar 15, okay, two field, बस साले चले जल्दी बात ये करता हूँ, create table emp, and I am giving a two field inside it, okay, id int, then after that name varchar I am, ठीक है, you get it। so I am giving a 50, now create table emp is fine, okay। so now we can check also show tables, तो अभी उसके अंदर एक ही टेबल हो emp नाम की, okay। now we are going to insert the value inside it, insert, हाँ बता,
हाँ डेटाबेस चेंज करने के लिए, मतलब कौन सा करंट डेटाबेस यूज़ कर। हाँ तो वो पता नहीं, तो सीक्वल भी आसानी है यार ओरेकल की तरह, इतना कुछ नहीं है उसमें, है ना। तो तूरे तेरा काम होगा ना ओरेकल से सारा डेटा ट्रांसफ़र करके हडूप में डालना होगा, ठीक है। मैं तुझे माई सीक्वल से सिखा रहा हूँ, ओके। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इंसर्ट इनटू टेबल नेम emp एंड वैल्यूज़। वैल्यूज़ मैं दे देता हूँ 2-3 रफली। अभी मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ कि हम एक डेटाबेस बना रहे हैं और उस डेटा को हम ट्रांसफ़र करेंगे हडूप में, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है ना अब तक, कुछ ऐसा हार्ड तो नहीं लगा होगा। अबे वो माई सीक्वल का वो खोलने के लिए, जैसे माई सीक्वल हाइफन यू तो हो गया यूज़र नेम, तो यूज़र नेम रूट है, फिर हाइफन पी मतलब पासवर्ड, एंटर करते हैं तो पासवर्ड मांगता है। ओरेकल में कैसे तुम आते हो? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ऐसे मैं 3-4 एंट्री ले लेता हूँ। विजय ले लिया, ठीक है, 1 ले लिया, ठीक है, इंसर्ट विजय की जगह राहुल, तो ये 3 एंट्री ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ मैं, ओके। और 101 डुप्लीकेट चलो चलेगा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू चेक देयर इज अ सीक्वल क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp, ये डेटा है हमारा, ओके। हाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसफर दिस डेटा फ्रॉम माई सीक्वल टू हडूप या ओरेकल हो गया, समझ रहा है। तो अभी हम, हाँ अभी हम क्या करेंगे, अब हडूप में हमको ये ट्रांसफ़र करना होगा सारा डेटा। ऐसे तेरे पास ओरेकल होगा, उसमें बहुत सारी टेबल्स होंगी, वो सारा टेबल्स का डेटा तुझे हडूप में डालना है, या माई सीक्वल होगा, बहुत सारी कंपनियां अपना डेटा ट्रांसफ़र करती है ना हडूप में, क्योंकि हडूप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे काम करने के लिए प्रेफर किया जाता है। माई सीक्वल ओरेकल इनके पास स्केलेबिलिटी नहीं होती और ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा पे ये काम नहीं करते हैं, ठीक है। सो नाउ हाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसफर दिस डेटा, अगेन वी कम ऑन, तो आज क्या करेगा, स्कूप ट्यूटोरियल डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। हाँ ये डाउनलोड हो जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरे से लेना ले लेना। 3rd चैप्टर है तेरा क्या, तो इंपोर्ट में क्या करते हैं, दिस दिस चैप्टर डिस्क्राइब हाउ टू इंपोर्ट डेटा फ्रॉम माईस्क्ल डेटाबेस टू हडूप। तो इंपोर्ट टूल वी आर गोइंग टू यूज इनसाइड इट। तो इंपोर्ट टूल इंपोर्ट इंडिविजुअल टेबल फ्रॉम RDMS टू HDFS। तो ईच रो इन अ हाँ तो इन लिनक्स में क्या, जावा में इंपोर्ट पैकेज हो जाता है ये। तो स्कूप के अंदर उसके टूल हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे देख सकता है कैसे यूज कर रहे हैं सिंटेक्स, स्कूप टूल का नाम लिखना है इंपोर्ट, क्योंकि तू कहाँ डेटा डाल रहा है, माई सीक्वल टू हडूप। इफ यू आर गोइंग टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम हडूप टू माई सीक्वल, तब तुझे क्या यूज करना होगा, एक्सपोर्ट, हाँ okay. So then there is a command is called example employee add importing a table। तो इंपोर्ट करने के लिए कमांड क्या होती है, स्कूप इंपोर्ट हाइफन स्कूप इंपोर्ट हाइफन कनेक्ट। हेलो इशराक, इशराक आर यू देयर? हेलो। तो देर इज अ कमांड स्कूप इंपोर्ट हाइफन कनेक्ट, ओके।
तब तुझे पास करना होगा JDBC कोलन MySQL, ओके, कोलन डबल स्लैश, अब तेरा जो भी IP एड्रेस होगा या लोकल होस्ट डाल सकता है तू, ठीक है। फिर देन कोलन MySQL का लिसनर पोर्ट होता है 3306 आई थिंक, जैसे तुम्हारे आई थिंक उसका 1506 होता है शायद, हाँ है ना। इतना लिखने के बाद फिर इसके बाद डेटाबेस का नाम लिखना होगा। तेरा डेटाबेस का नाम क्या था? लक। फिर तुझे लिखना होगा, हाँ बोल बोल बोल, हर बार यार, हाँ यूजर नेम क्या है? रूट। हाँ तो रागनी कहाँ से हो जाएगा? बताया नहीं था तो MySQL-u रूट था, हाइफन हास पासवर्ड, तो पासवर्ड इज ऑल्सो अ रूट, ओके। Then after that what we are going to do, we are going to transfer the table. So we are going to write a name of table, hyphen table. These are the attribute, you can say that, hyphen password, hyphen user, okay. Then or later tomorrow I will ask you one question कि ये -m1 क्यों लिखते हैं, ओके। टुमारो आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन, तब आंसर दूंगा मैं तुझे। अगर तू पढ़ेगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि तूने काम किया। देन आफ्टर दैट अभी अगर मैं अभी पाथ नहीं देता हूँ कि हडूप में मेरे को किसी भी डायरेक्टरी में नहीं डालना है, तो ये हडूप की किसी भी मतलब हडूप की डायरेक्टरी में नहीं डालेगा, लेकिन हडूप में डाल देगा, किसी डायरेक्टरी में नहीं डालेगा, हडूप के फाइल सिस्टम में डाल देगा। अभी मैं कोई पाथ नहीं देख रहा हूँ, तो मैं रन कर रहा हूँ उसको। एक एरर आ रही है, मिसिंग आर्गुमेंट फॉर ऑप्शन टेबल, मतलब टेबल के लिए आर्गुमेंट मिसिंग है, मतलब कौन सी टेबल डाल रहा है भाई, उसका नाम भी तो लिखना होगा, ठीक है। सो -m भी लिखना है, इसका मतलब होता है मैपर होता है, लेकिन मेरे को एग्जैक्टली आंसर कल तू देगा। देख EMP वाली टेबल को मैं डाल रहा हूँ, अभी मेरा चलने लग गया थोड़ा सा, ये देख इंपोर्ट होने लग गया, आ रहा है ना, बिगनिंग इंपोर्ट ऑफ EMP, कनेक्टिंग टू रिसोर्स मैनेजर। ये देख नंबर ऑफ स्प्लिट बन गए तेरे, आज तेरे साथ कोई है क्या? भतीजे अरे नहीं, डोंट वरी, तो भतीजी है, अच्छा। अरे कोई बात नहीं यार, सगे हो कैसे भी हो, भतीजे ही होने चाहिए। अरे डोंट वरी यार, क्या करते हैं लोग? अच्छा, आई थिंक ये टाइम क्यों ले रहा है इतना? एक्चुअली में इस मशीन में थोड़ा सा नोड मैनेजर का इशू भी आ रहा था, वो भी देखना है अभी क्या हो रहा है। तो यार अभी चल ही रहा है एक्चुअली में ना, इसमें नोड मैनेजर का इशू आ रहा है, मेन चीज़ है जो उनसे, वो सब तो सही है, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली में इसमें हडूप जो इंस्टॉल कर रखा है मेरा लैप ही नहीं है, तो इसमें ये दिक्कत आ रही है
आई थिंक चलने लग गया, चलने लग गया, लगने लग गया। ये देखो मैपर और रिड्यूसर आने लग गए शायद। ये देखो मैपर 0%, रिड्यूसर 0%। ये सब तेरे से क्वेश्चन पूछूंगा, ये कल बताऊंगा फिर मैं तुझे, क्योंकि क्योंकि जब तक तू प्रैक्टिस नहीं करेगा ना भाई, क्योंकि देख मैं हडूप में क्या है, तुझे चीज़ें दिखाऊंगा और चीज़ों को तू फाइंड आउट करेगा, फिर मैं तेरे से क्वेश्चन पूछूंगा, अगर तू मेरे को पूछेगा तब मैं उसका आंसर रिप्लाई करूंगा, क्योंकि पहले मैं तेरा आंसर चाहता हूँ कि तूने क्या पढ़ा और क्या सोचा। ये हमारा हडूप डल गया, मतलब वो डेटा चल गया। तो ये हडूप की किसी डायरेक्टरी में नहीं आया। अभी क्या बोला है लास्ट में, पढ़ 2 लाइन। रिट्रीव 3 रिकॉर्ड्स। सो ये हडूप की कहाँ पड़ा होता है, हडूप एफ हाइफन, जब तू एल करके देखेगा। सो ये अभी हडूप की किसी डायरेक्टरी में नहीं गया है। ये जो EMP वाली टेबल है, ये हडूप की किसी डायरेक्टरी में नहीं गई है। ये देख यहाँ पड़ी हुई है, समझ रहा है। तो अगर तू रीड करना चाहता है, इसको रीड भी कर सकता है, कैट करके EMP, और EMP के अंदर ये part-m-50, इस नाम से एक फाइल है इसके अंदर। ये है तेरा वो डेटा, यही था ना 100 पंकज, 100 विजय राहुल। इसके अंदर फाइल बन जाती है पार्ट माइनस नाम से। अब देख मैं दिखाता हूँ, चल मैं हडूप के, अब मैं अपर की दबाता हूँ। ये मेरी कमांड थी ना, स्कूप हाइफन इम्पोर्ट हाइफन कनेक्ट माई सिक्वल का मैंने पास कर दिए थे क्रेडेंशियल्स, है ना। यूज़र नेम रूट था, पासवर्ड रूट था, और टेबल कौन सी डालनी थी, EMP। अब मैं यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट लिख लेता हूँ, टारगेट हाइफन DI, टारगेट डायरेक्टरी, और वो टारगेट डायरेक्टरी में पास कर देता हूँ। टारगेट डायरेक्टरी हडूप में क्या थी, लक्की नाम से। लक्की के अंदर एक फाइल बनेगी। समझ रहे हैं। ऐसे ही तो लोग क्या करते हैं, अब देख यहाँ पे क्या बोल रहा है, लकी ऑलरेडी एग्जिस्ट। लकी डायरेक्टरी क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो लकी के अंदर हम क्या कर देते हैं, एक और डायरेक्टरी बना देते हैं OP नाम से। तो OP नाम की फाइल के अंदर डाल देगा वो। ठीक है। अब लकी के अंदर देख, नंबर ऑफ स्प्लिट आ गए, 1 है। तो ऐसे ही तो सब लोग यही तो करते हैं कि पूरा माई सिक्वल का डेटा वो लोग क्या डाल रहे हैं, हडूप में डाल रहे हैं, फिर हडूप पे एनालिसिस कर रहे हैं उस डेटा की। समझ रहे हैं ना। फिर हडूप पे एनालिसिस हो रही है उस डेटा सेट की। भाई पढ़ने वाला काम करियो बस, खत्म। बाकी ये वीडियो बन रहा है, ये ले जाइयो जो तुझे ले जाना है। अब देख चेक करना है मुझको हडूप। अब मैंने लक्की के अंदर तो कुछ नहीं बनाया था ना, याद हो तो, सिर्फ लक्की नाम की डायरेक्टरी क्रिएट की थी इन स्टार्टिंग। नाउ वी आर गोइंग टू चेक इनसाइड इट, हडूप fs-ls/लक्की। लक्की के अंदर OP बना है ना, और OP के अंदर बाय डिफॉल्ट इस नाम से फाइल बनती है। अब चेक करना कि part-m यानी मैपिंग हुई है डेटा की, और उसका साइज भी दिखा रहा है कितना है, 31 बाइट। तो part-m-1 2 3 4 5 इसी नाम से क्यों बनती है फाइल, ये भी फाइंड आउट करना। और LS की जगह क्या करना चाहते हैं, कंटेंट रीड करना चाहते हैं उसका, फाइल का। तो देर इज अ कमांड cat inside a Hadoop, so we can easily read the data inside it. समझ में आया, समझ में आया। तो वैसे ही अगर आगे बढ़े, जैसे कि हमें अगर सबसेट ऑफ डेटा डालना है, मतलब हम वेयर क्लॉज भी लगा सकते हैं। जैसे मान ले कि अभी हमने टारगेट डायरेक्टरी का किया, ठीक है। अगर मान ले इंपोर्ट सबसेट ऑफ डेटा, तो तू वेयर क्लॉज लगा सकता है, वेयर सिटी इक्वल टू सेकेंड बेड, अगर मतलब जो सीक्वल में होता है, या लगे रहते हैं, इनका कुछ काम ही नहीं है। ओके। सो अगर तुझे जैसे सबसेट ऑफ डेटा डालना है, तो तू हाइफन एट्रीब्यूट यूज़ कर लेगा एक और, वेयर, और कंडीशन पार्ट कर देगा।
और उससे रिलेटेड जो भी डेटा होगा वो उस टेबल का तेरा हडूप की जिस भी डायरेक्टरी में डालना चाहता है हाइफन हाइफन टी आई करके वहाँ डाल सकता है। समझ रहा है? हर बार वही लिखना है, स्कूप इंपोर्ट, तेरे को हाइफन हाइफन कनेक्ट तेरा क्या है, एक एट्रीब्यूट है जिसमें तूने पास कर दिया माई सीक्वल का, फिर उसका हाइफन हाइफन यूज़र रूट हाइफन हाइफन पासवर्ड भी टेबल का नाम, और मैपिंग तू एक ही चाहता है। अगर मैपिंग तू एक से ज़्यादा चाहता है ना, तो तुझको क्या करना होगा, माई सीक्वल की किसी भी टेबल में किसी भी एक फील्ड को तुझे प्राइमरी डिफाइन करना होगा, किसी भी एक फील्ड को, मतलब यूनिक होना चाहिए वो डेटा। वो तू फाइंड आउट और भी करेगा, कल पूछूंगा क्वेश्चन। और फिर हाइफन हाइफन वेयर क्लॉज से तू क्लॉज दे सकता है और तुझे जहाँ पे भी डालना है हडूप की डायरेक्टरी पास कर सकता है। तो समझ रहा है? हाँ, तो वेयर लगा सकता है तू। देख अब मैं तुझे सिखाता हूँ इंक्रीमेंटल इंपोर्ट। अब मान ले तेरा माई सीक्वल में डेटा अपडेट हुआ है, समझ रहा है? अरे कुछ बड़ा चीज़ नहीं है भाई, इतना डरा मत कर। अगर 10 चीज़ें देखेगा तो समझ में भी आएगी। ये देख, अब जैसे कि ये तेरा माई सीक्वल था, इसमें मैं एक और वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ। राहुल था, पूजा कर देता हूँ। आई एम गोइंग टू एंटर पूजा इनसाइड इट, और 101 की जगह क्या कर देता हूँ, 102 कर दिया। और अगर सिलेक्ट स्टार्ट करूँ फ्रॉम, तो पूजा भी आ गया, है ना? अब पूजा के बाद तुझे क्या करना है, मेरे को एक और डाल देता हूँ, सुनीता। ठीक है, इसमें भी तेरे को क्या चाहिए, एक यूनिक फील्ड चाहिए होता है अगर इंक्रीमेंटल इंपोर्ट भी तुम्हें सपोर्ट करना। अब ये अपडेटेड डेटा आया है तेरे पास, आ रहा है ना? अब यही डेटा तू जाता है बस ट्रांस वो इंपोर्ट, बाकी नहीं चाहता है ना? तो इंक्रीमेंटल अचीव करने के लिए क्या होती है कंडीशन, पढ़। इंक्रीमेंटल इंपोर्ट इज अ टेक्निक दैट इंपोर्ट ओनली द न्यूली एडेड रोज इन द टेबल। अगर टेबल में कुछ न्यूली रोज ऐड होती हैं तो इट इज़ रिक्वायर्ड टू ऐड इंक्रीमेंटल चेक कॉलम और लास्ट वैल्यू ऑप्शन टू परफॉर्म द इंक्रीमेंटल इंपोर्ट। तो हमें क्या करना होगा, सेम चीज़ें वही लिखनी होंगी। ये थी ना हमारी कमांड, क्या थी, ये थी। ओके, सो रुक जा, स्क्रीन तो बड़ा हो जाएगा। अब दिख रहा है? सो हमें क्या लिखना होगा, हाइफन हाइफन इंक्रीमेंटल। और दो मोड होते हैं, एक अपेंड होता है और एक लास्ट मॉडिफाई होता है। यहाँ इन लोगों ने लास्ट मॉडिफाई के बारे में कुछ नहीं दिया है, और कल मैं तेरे से पूछूंगा लास्ट मॉडिफाई होता है क्या। सो इंक्रीमेंटल के अंदर कितने इंपोर्ट आते हैं, कितने मोड आते हैं, दो आते हैं। वन इज अपेंड मोड एंड अनदर इज लास्ट मॉडिफाई। लास्ट मॉडिफाई अब कोई यूज़ नहीं करता है ज़्यादा, अब सब लोग अपेंड ही यूज़ करते हैं। लेकिन तुझको लास्ट मॉडिफाई के बारे में सर्च करके आना है कि लास्ट मॉडिफाई कैसे होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक और लाइन ऐड करता हूँ, हाइफन हाइफन इंक्रीमेंटल। स्पेलिंग सही है इंक्रीमेंटल के, INCREMENTAL, इंक्रीमेंटल। और कौन सा इंक्रीमेंटल, अपेंड। ठीक है, एक तो ये दे दिया, दूसरा क्या बोलता है वो, इंक्रीमेंटल अपेंड। फिर हाइफन हाइफन चेक कॉलम। अब कौन सा कॉलम के बेसिस में तुम करवाना चाह रहे हो, तो हाइफन हाइफन चेक कॉलम। तो चेक कॉलम में क्या आ जाएगा, चेक कॉलम में तेरा क्या आ जाएगा, आईडी वाला, आईडी था ना, ठीक है, आईडी। और फिर आता है हाइफन हाइफन लास्ट, हाइफन हाइफन लास्ट वैल्यू। लास्ट वैल्यू उसकी कितनी थी, 102 थी ना, याद हो तो 101 थी ना जो डेटा आया था। तो ओपी की जगह अब OP1 कर देते हैं। तो ये पूरी टेबल में डेटा वहाँ से नहीं उठाएगा, मतलब 101 का तो ऑलरेडी हडूप में आ चुका था डेटा,
मतलब अगर उसके बाद का जितना भी होगा इंक्रीमेंट वो वाला डेटा उठाना चाहिए, और वो सारा डेटा किस में डाल देगा, वो लक्की नाम के अंदर एक और डायरेक्टरी क्रिएट करेगा OP1, और वहाँ पे वो डेटा ट्रांसफ़र कर देगा। तो यहाँ पे एक एरर बोल रहा है, क्या एरर बोल रहा है, पढ़ना जरा। कि इसने बोला है सेटिंग योर पासवर्ड ऑन द कमांड लाइन इज इनसिक्योर, कंसीडर यूजिंग -p इंस्टेड। ये तो वार्निंग दी है उसने। एरर क्या बोल रहा है, एरर पार्सिंग आर्गूमेंट फ्रॉम इंपोर्ट, इंपोर्ट को पार्सिंग करने, अनरिकग्नाइज कमांड -लास्ट। अच्छा, उसको ये समझ में नहीं आ रही कि ये कमांड क्या है -लास्ट, तो मे बी ये लोग एरर करते हो ऐसे दे देते हैं -लास्ट -वैल्यू। अब चलने लग गई ना, एरर पता चली। तो साले ये आधा अधूरा तो मिस्टेक करके रखते हैं, साला घंटा समझ में आएगा किसी को, इधर हाइफन ही नहीं दिया था। तो चीज़ें समझ में आ रही है, कुछ भी नहीं है। क्या लिखना है, स्कूप इंपोर्ट -कनेक्ट, कनेक्ट मतलब क्रेडेंशियल पास कर दो, -, यूजर नेम, पासवर्ड, टेबल का नाम, और फिर उसके बाद जो भी एक्टिविटी करना है, वेयर क्लॉज चलाना है या तुम्हें इंक्रीमेंटल चलाना है, इंपोर्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब ये वही डेटा ट्रांसफर करेगा हडूप की डायरेक्टरी में जो इंक्रीमेंटल डेटा है। मान ले अगर तूने आज तेरा दिन भर का डेटा आ गया हडूप में, अब तू सो गया, अब सुबह भैया तेरा और भी ट्रांजेक्शन हुए होंगे, रात भर लोग करते नहीं है क्या साला, कुछ रिचार्ज कुछ ये। अब देख इसमें क्या लिखा लास्ट में, पढ़, -, इंक्रीमेंटल अपेंड, -, चेक कॉलम IDEA। अब लास्ट वैल्यू क्या थी, 103, क्या थी। हाँ, अब हडूप की हम डायरेक्टरी चेक करेंगे, यही थी ना लक्की वाली। लक्की के अंदर अब 2 डायरेक्टरी बन गई हुई, एक OP और एक OP1। बनी ना, इन /OP1। so we are going to check inside a /OP1, so I am going to check here। so यहाँ पे अगेन उसी नाम से फाइल बनी, part -m-0000, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ ls व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, कैट कमांड, और एंटर करके देखेगा तो देख वही डेटा आया होगा जो कि इंक्रीमेंटल डेटा था। हेलो, यू गेट इट इशराक। तुझे इजी तो लग रहा है ना, मैं हडूप इजी वे में बता रहा हूं मैं। भैया तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं देख यहाँ पे मशीन पड़ी हुई थी आज इसकी रागनी की, तो दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू। वैसे अगर तू ये स्कूप डालने का सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा हडूप वडूप डालने का, अगर तेरा AWS में EMR को एक्सेस करके तो आराम से काम कर सकता है ना। अगर तुझे ये सब सीखना है तो भैया मैं रागनी को बोल दूंगा, वो तेरी क्लासेस भी लेना स्टार्ट कर देगी। तो तुझको VMware में अपना डालना होगा हडूप इंस्टॉलेशन, तो शी कैन टीच यू रेस्ट ऑफ द क्लासेस, है ना, ठीक है। सो ये हमारा पूरा का पूरा इंक्रीमेंटल का था। और ऐसी ही, हाँ बोल बोल। मतलब क्या करना चाहता है, मतलब एक टेबल में अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन होता है, तो अगर मान ले कोई डेटा में मॉडिफिकेशन होता है तो लास्ट मॉडिफाई का कैसे यूज़ है वो देखेगा तू, ठीक है। और इंक्रीमेंट होता है तो वो रिकॉर्ड तो अपने आप ही आ रहा है, तुझे दिखाया इंक्रीमेंटल के थ्रू। और अगर रेगुलर बेस, हाँ बता। हाँ। हम्म, हम्म। तो यार भैया मैंने क्यों बोला, तो आज की डेट में हर लोग अपनी टेबल में एक प्राइमरी की तो रखते ही है ना, ID को तो प्राइमरी रखते हैं क्योंकि वो डुप्लीकेसी से बचना चाहते हैं। हाँ, तो वो एक को प्राइमरी रखेंगे तो हमें पता ही रहेगा लास्ट वैल्यू क्या रहती होगी उसकी,
हाँ, बाकी अब डिपेंड करता है स्क्रिप्ट वाले पे। अब जो स्क्रिप्ट वाला स्क्रिप्ट तैयार करेगा उसे पता है कि मेरी जो इंक्रीमेंटल की वैल्यू वो हर बार बदलेगी। बाकी जो स्क्रिप्टिंग वालों का काम है ना, तो वो रेगुलर बेसिस में चलाते रहेंगे स्क्रिप्ट वो पूरा का पूरा। समझ में आ रहा है? सो ये इंक्रीमेंटल डेटा है पूरा का पूरा, इसमें डुप्लीकेट डेटा नहीं आ सकता है। फिर आता है जैसे कि पूरी टेबलें डालनी हो, मतलब पूरी डेटाबेस की पूरी टेबलें डालनी हो। जैसे एक डेटाबेस है, उसमें सारी टेबल्स होती हैं ना, और 1000 हो सकती हैं, 2000 हो सकती हैं। तो उसके लिए कमांड क्या है? स्कूप इंपोर्ट हाइफन एफएन, डेटाबेस का नाम लिखो, और देन आफ्टर दैट यूज़र नेम एंटर मार दे, पूरी की पूरी टेबल हडूप में आ जाएगी, जितने भी रखे होंगे उस डेटाबेस में। गेट इट? फिर आता है उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है एक्सपोर्ट। ये कल बता दूंगा मैं तुझे। हेलो इशराक। हाँ, तो ये तू डाउनलोड इजीली कर सकता है ट्यूटोरियल पॉइंट से जाके। अगर तू यहाँ पे डालेगा ना स्कूप ट्यूटोरियल डाउनलोड, ऐसे डालेगा, बस वेट, यहाँ पे कहीं पे भी लिखेगा ना स्कूप ट्यूटोरियल पीडीएफ, तो ये डाउनलोड कर लेना ट्यूटोरियल पॉइंट से। ओके? हाँ, इसको ढंग से एक बार पढ़, और देन आफ्टर दैट कि एक दिन का टाइम में हमारा वो अगर ठीक हो जाता है, सो वेल एंड गुड है। बिल्कुल। वो मैं बता दूँगा इशराक, एक मिनट। ओके, आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल। कल क्या 10 बजे शिफ्ट है? मतलब मैं रागनी को बोल दूंगा वो सुबह तुझे पढ़ा देगी, है ना?